Hello guys, I'm Kumar K and recently my student has cracked Amazon despite being from a tier 3 college. मैं लगभग 11 से 12 घंटे तक पढ़ लेता था एक दिन में। अच्छा, मतलब आप 12 आवर्स डीएसए करते थे, राइट? जैसे 12 आवर डीएसए in a single day. ओके ओके ओके। Before getting this offer, he has failed for a total of 50 times while applying to different top product based companies like Amazon, Google, Microsoft, Apple and many more. But guys, he never gave up and hence the final result is in front of everyone today. हाँ, सर सेकंड क्वेश्चन मतलब मल्टी डायमेंशन डीपीए क्वेश्चन था और वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक्चुअल में। ओके, तो फिर तो उसके लिए आप क्या क्या किया आपने उसके लिए फिर? पहली बात तो मैंने मतलब बेसिक से डीपी लगाई उसमें, लेकिन सर उसमें कुछ ही टेस्ट केस पास हो रहे थे। ओके तो सर उसके बाद फिर मैंने मल्टी डायमेंशन डीपी का यूज किया, मैंने उससे और ऑप्टिमाइज किया। तो सर मतलब आई थिंक काफी टाइम लगा था उसे मतलब पूरा कोड लिखने में। ओके ओके। सो लाइक कौन सा टाइम तक आपके सारे टेस्ट केसेस पास होने लग गए थे या नहीं हो पाए थे? तो लास्ट के 2 मिनट में कोड चल गया था मेरा फिर लास्ट ओके, डीपी वाला, राइट? डीपी वाला ये। फुल स्कोर हो गया होगा, राइट? ओके। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा था? सर सेकंड क्वेश्चन पे ज्यादा ही हार्ड था, उसमें सेगमेंट ट्री और लग रहा था। तो मतलब सेगमेंट ट्री का हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछ दिया आपको उन्होंने? हाँ सर मतलब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया था। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. ओके And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. ओके। एंड इज इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, रोहित राणा? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके। Guys, I want you also, the person watching this video, to crack 50 LPA software engineer offer from Amazon. That's why I created this lovely podcast for you, where we are going to discuss in detail the DSA preparation journey for online assessment and interviews, the off-campus strategy, LinkedIn strategy, resume strategy, and many more things which were followed by my lovely personal mentoring student Rohit Rana. He has been my student for more than 2 years now. He has been coming to the daily life training classes of hard level DSA OICP. He has been utilizing the job referral support and he's very consistent in giving me daily updates and consistent in attending one-to-one mentoring also. So we are going to learn a lot from this podcast. You just make sure that you note all the important points so that you exactly know what type of mindset a person should have from first year of college, so that in the final year they can land up a prestigious job in FANG. Ram Ram. The brutal truth is that thousands of students are giving Amazon online assessment each month, okay? And most of those people are failing. Why? The first common mistake is doing only 100 to 500 standard easy medium DSA questions from influencer DSA sheets. The problem with that is that everyone knows the solution to those standard DSA problems. And in Amazon online assessment, like in my recent video, you can check in 2025 end, like from November, December, they have started asking LLM proof DSA problem, hard unseen DSA problems, such that ChatGPT, Gemini, and DeepSeek, if you paste these Amazon online assessment problems in these AI models, they will give the wrong answer for that. So if you're only doing 100 to 500 standard easy DSA questions from LeetCode, GFG, and standard DSA sheets, that's not enough. So that is the brutal truth, and you should really know about it. The next thing is that you need to prepare for hard unseen DSA problems. All the top product based companies are trying to aim, like Amazon, Google, Microsoft. Go and check their recent OA problems on Reddit and LeetCode discuss. Prepare them. Be very consistent with LeetCode contests and Codeforces contest. And guys, the same route has been followed for Amazon SD interviews also, like both for SD1 roles and SD intern. Half of the interview involves story based problems and hard and new problems which you have not seen before, so that they can check which engineers are able to use their own thinking skills, rather than like accepting the candidates who have just memorized the standard DSA patterns and the top 10-15 questions of each topic. They don't want people like that. So in 2025-2026 you need to shape your strategy like that, so that you can also land offer like that. राम राम। सो आई हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर फॉर यू। देखो रोहित राणा, बच्चों को ऑफ कैंपस में बहुत दिक्कत हो रही है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले जो फैंग में ट्राई कर रहे हैं इंटर्नशिप फुल टाइम का, वो अप्लाई करते हैं बट उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रोहित राणा, क्या आप डिटेल में समझा सकते हो आप ऑफ कैंपस में आपने ऐसा क्या किया था जिससे अमेजोन तक आपको ऑफर लग पाया इंटर्नशिप का, एसडी इंटर्नशिप का? तो आप बता सकते हो उसका प्रोसीजर? सर ऑफ कैंपस ऑफर आना काफी डिफिकल्ट होता है। सर पहली बात तो सर कोई मेल ही नहीं आता है बच्चों को, मैक्सिमम रिजेक्शन वही हो जाते हैं। सर उसके लिए मतलब आपको अपना लिंक्डइन, अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करना होता है। ओके हाँ, तो सर मैंने तो आपका कोर्स लिया था, तो सर उससे मुझे काफी बातें पता चली, मतलब इनसाइडर टिप्स जो हम नॉर्मल बच्चों को नहीं पता होती हैं। ओके ओके। तो उससे काफी हेल्प। आप अपना लिंक्डइन रेज्यूमे आप इंप्रूव करते रहते थे वाया लिंक्डइन रेज्यूमे? हाँ सर, मैं लगभग 1 साल लगा मुझे इंप्रूव करने में उसको। और मैंने बहुत बार आपका लिंक्डइन रेज्यूमे रिव्यू भी किया। ओके। हाँ सर, आपने बहुत बार चेक किया था, मैं आपको भेजी थी लिंक्स और आपने ओके। ठीक ठाक दिया। ऑफ कैंपस में आप एप्लीकेशंस का क्या सोचते हो, क्या बल्क और क्या वॉल्यूम होना चाहिए? क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई किया बट नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कितना अप्लाई करना चाहिए इन 2026 अगर कोई ट्राई कर रहा है? सर अप्लाई तो सर मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने सर एप्लीकेशन आ रही, जितने फॉर्म्स आ रहे, सब में अप्लाई कर दो सर, क्योंकि एक्चुअली काफी डिफिकल्ट हो गया 26 में ऑफ कैंपस मतलब एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्रैक करना। ओके ओके। मतलब वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा रखना है, राइट? वॉल्यूम बहुत ज्यादा रखना है ये सर। ओके ओके।
अब आप ये बताइए कि आपने ऑफ कैंपस अमेज़न के लिए क्या किया? आपने कैसे स्टार्ट किया? कहाँ अप्लाई किया? क्या ट्रिक थी आपकी? क्या स्ट्रैटेजी थी? सर इसी साल मतलब 2025 में हुँ। सर मतलब मतलब मई के आसपास एक अपॉर्चुनिटी हैकॉन की। तो सर हैकॉन मतलब अमेज़न इंडिया कंडक्ट करवाती है ओके। मतलब प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ स्टूडेंट्स के लिए। तो अमेज़न हैकॉन में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सर। ओके, तो लाइक इसमें अप्लाई करने का बेनिफिट क्या होता है? आप बता सकते हैं रोहित? सर बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले जो आप हैकाथॉन है, आपको प्राइजेस मिलते हैं। ओके। और सर दूसरी बात की जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो एक हायरिंग चांस खुल जाता है कि आप अमेज़न में एक इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके, ओके, ओके। तो लाइक जब आपने अप्लाई किया तो आपको उसके कितने दिनों के बाद ओए का लिंक आया रोहित? सर नॉर्मली मुझे ओए लिंक्स नहीं आते थे, तो सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ओए लिंक आएगा, पर यहाँ पे मुझे आ गया था ओए लिंक। ओके, ओके, ओके। और फिर आपको कितना दिन का टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए जैसे ही आपको लिंक आया? सर लगभग 15 दिन का लगभग टाइम मिला था। 15 दिन का आपको टाइम मिला था। तो अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि हैकॉन ओए में क्या पूछा गया था? क्या टाइम ड्यूरेशन था? थोड़ा चीजें आप समझा सकते हो? बहुत लोग को जानना है। ये सर सर हैकॉन ओए लगभग उसमें सबसे पहले 2 डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे ओके, और सर एक एसक्यूएल क्वेरी और बाकी सीएस फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। ओके। और टोटल टाइम लगभग कितना मिल रहा होता है ये सब करने के लिए रोहित? आई थिंक अभी तो याद तो नहीं एग्जैक्ट, आई थिंक 1.5 घंटा मिला था लगभग। ओके। और वो जो 2 डीएसए क्वेश्चन थे, क्या आप ये बता सकते हो कि वो 2 डीएसए क्वेश्चंस में क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे थे? क्या चल रहा था? सर वो दोनों डीएसए क्वेश्चंस अनसीन क्वेश्चंस थे। ओके। और सर हैकॉन का लेवल जनरली हाई रहता है, मतलब वो मीडियम टू हार्ड लेवल पूछते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रहे थे हाँ आपको सर। ओए में। तो फर्स्ट यस। क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स के ऊपर था, बता सकते हैं? सर फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर और बाइनरी सर्च के ऊपर था। ओके, ओके, ओके। सो मल्टीपल टॉपिक्स मिक्स करके आपको हार्ड हाँ सर, मल्टीपल टॉपिक मिस करके सर मैंने उस तरह काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मुझे वो क्वेश्चन हो गया था। या लाइक लेकिन वो आपने 51 आवर कोर्स में ऐसा बहुत क्वेश्चन देखा भी होगा, हाँ राइट? सर, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे थे मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने टाइम पर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन तो दिखती बात है और हार्ड होगा, बट आप बताएंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या चल रहा था? सर सेकंड क्वेश्चन मतलब मल्टी डायमेंशन डीपीए क्वेश्चन था और वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक्चुअल में। ओके। तो फिर तो उसके लिए आप क्या क्या किया आपने उसके लिए फिर? सर पहली बात तो मैंने मतलब बेसिक सी डीपी लगाई उसमें, ओके, लेकिन सर उसमें कुछ ही टेस्ट केस पास हो रहे थे। ओके, तो सर उसके बाद फिर मैंने मल्टी डायमेंशन डीपी का यूज किया, मैंने उससे और ऑप्टिमाइज किया। तो ओके, सर मतलब आई थिंक काफी टाइम लगा था उसे मतलब पूरा कोड लिखने में। ओके, ओके। सो लाइक कौन सा टाइम तक आपके सारे टेस्ट केसेस पास होने लग गए थे या नहीं हो पाए थे सेकंड क्वेश्चन में, आपको क्या लगता है? तो लास्ट के 2 मिनट पे कोड चल गया था मेरा फिर लास्ट ओके, डीपी वाला, राइट? डीपी वाला। ये आपका फुल स्कोर हो गया होगा, राइट? और एसक्यूएल सीएस फंडामेंटल इसके कंपैरिजन में इजी था कि हार्ड था जो पूछा गया था? सर वो मीडियम टू मीडियम लेवल का हुआ मैं। ओके, ओके। तो वो भी उसमें भी आपने फुली स्कोर किया होगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, उसमें भी लगभग फुल स्कोर किया था। ओके, ओके। तो आपको रिजल्ट उन्होंने कितने दिन बाद बताया रोहित? सर आइडिया सबमिशन में जल्दी आ गया था, आई थिंक 2 वीक के अराउंड। लेकिन सर मुझे अनएक्सपेक्टेडली एक बात पता चली कि 1 महीने बाद हाँ। कि मैं टॉप 25 फास्टेस्ट कोडर्स में था उसमें। ओके, तो आपको इंडिया में टॉप 25 रैंक्स में आप आए थे, राइट? यस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो सर उसके बाद तो मैं काफी खुश हो गया था पहली बार देख के कि मतलब इस टॉप 25 में नाम आया। ओके, और सर उसके बाद अमेजोन ने मुझे गुडीज भेजी थी, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन गुडीज। ओके, ओके, ओके। तो लाइक उसके बाद आपको लगा था और कुछ होगा या आपको कुछ आइडिया नहीं था उसके बाद? सर उसके बाद मुझे लगा था कि सर यहीं पे खत्म हो चुका है, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ओके। लेकिन सर अनएक्सपेक्टेडली मतलब 6 से 7 महीने बाद मुझे मतलब एक उसके मेल आ 6-7 गया। महीने बाद आपको मेल आया? यस सर। मिलने के बाद। ओके। तो और सर वो मेल में क्या लिखा था रोहित? उस मेल में मतलब वो इनवाइट करे थे एसडी इंटर्न ओए के लिए। ओके, ओके। मतलब आपका एसडी इंटर्न का अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, राइट? तो यस सर। उस ओए को देने के लिए आपके पास कितना टाइम था? सर उस ओए को देने के लिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। और कौन सा प्लेटफॉर्म इस बार यूज होने वाला था एसडी इंटर्न ओए के लिए? सर ये हैकर रैंक पे करवाते हैं अमेज़न। ओके, ओके। तो लाइक आप हैकर रैंक का ओए में क्या हुआ था, अब आप डिटेल में बताना चालू करो। और हाँ, हैकर रैंक के ओए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हजारों लोग अमेज़न का ओए हर महीने देते हैं हैकर रैंक पर इंटर्न और SD1 SD2 रोल के लिए। तो लोग ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है कि आपको कैसे क्वेश्चन आया था और आपने कैसे डील किया था। उनको इससे बहुत हेल्प होने वाली है रोहित, तो आप बता सकते हैं अपना सर वो क्वेश्चन एकदम मतलब अनसीन क्वेश्चंस होते हैं। एक्सपीरियंस। सर जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरा पहला राउंड था मतलब हैकर रैंक पे। ओके, ओके। तो तो लाइक वो सर जो 2 क्वेश्चंस आए थे वो आपने पहले कभी नहीं देखे थे, आपके लिए न्यू थे? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखे थे, एकदम मतलब नए क्वेश्चंस थे। और इजी लेवल पे थे कि हार्ड लेवल में थे वो? सर पहला तो मीडियम हार्ड था, लेकिन सेकंड वाला कुछ ज्यादा ही हार्ड था। अच्छा, तो आप फर्स्ट वाले के बारे में पहले बताना चालू कीजिए। यस सर। सर पहला क्वेश्चन बाइनरी सर्च और वीडी अप्रोच से के आसपास आया था, मतलब ऐसे ही कुछ था। उन दोनों को मिक्स करके करना पड़ रहा था, इन राइट? दोनों को मिस करके सर पर वो तो हाँ, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, राइट? तो आपने हाँ मैनेज सर वो तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो वो हो गया था, मतलब वो चल गया था। ओके, ओके। और सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा था? सर सेकंड क्वेश्चन पे ज्यादा ही हार्ड था, उसमें सेगमेंट ट्री और ओके। लग रहा था। तो मतलब सेगमेंट ट्री का हार्ड एंड सीड ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपको उन्होंने?
हाँ सर, मतलब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया था ये सर। ओके ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है? आपने क्या क्या किया? आपने पहले ही सारे टेस्ट केस पास कर लिए कि क्या चल रहा था? नहीं सर, उससे पहले तो मैंने नॉर्मल अप्रोच से किया, लेकिन मतलब नहीं चल पाई सारी टाइट टेस्ट केस। ओके, मतलब पहले आपने ब्रूट फोर्स नॉर्मल अप्रोच किया, ब्रूट फोर्स नॉर्मल अप्रोच ट्राई किया फिर सर। आपने क्या किया? सर फिर मुझे लगा कि सेगमेंट्री यूज करना पड़ेगा, फिर सेगमेंट्री का कोड लिखा सर, वो थोड़ा लंबा सा कोड होता है। हाँ हाँ, सेगमेंटरी, ठीक है ठीक। हाँ सर। तो तो फिर एंड तक यहाँ बताना चालू कीजिए, एंड तक अच्छा, क्या तो हुआ? एंड के मतलब लगभग लास्ट के 3-4 मिनट बचे थे, तब जाके मेरे टाइट टेस्ट के रन हो गए थे। ओके ओके, तो आपने सारे टेस्ट केसेस इस बार ही पास कर लिए, राइट? हम सारे टेस्ट केस और लास्ट में पास कर। ड्यूरेशन इसका 1 to 1.5 आवर होता है जनरली, राइट? अगर आप हाँ सर, 1 आवर का था लगभग 2 डीएसए क्वेश्चन। एसडी इंटर्न के लिए सिर्फ 1 आवर, और उसके अंदर भी सेगमेंटरी और वो सब, राइट? हाँ सर, सेगमेंट्री मुझे। इंटेंस सिचुएशन होगी, ओके। तो लाइक इसके आपको कितने टाइम बाद उन्होंने बताया कि आपको इंटरव्यू आ चुका है? मतलब उन्होंने कितना टाइम दिया आपको बताने में? सर मुझे लगभग 1 हफ्ते बाद मेल आ गई थी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, लेकिन डेट नहीं बताई थी उन्होंने कब होगा। ओके ओके, तो लाइक आपने एग्जैक्टली कितने दिनों के बाद उसके इंटरव्यू दिया है अमेजोन का? सर मुझे अप्रॉक्स 1 महीना लगा था उसके बाद वही दिन। सो रोहित राणा, आपके डीएसए वाले पार्ट में क्या हो रहा था आपके इन द इंटरव्यू, आप बता सकते हैं? सर डीएसए में उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे हम्म। जो तो लाइक उनका लेवल क्या था? इजी था, मीडियम था कि हार्ड था? सर वो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस थे लगभग। ओके ओके, तो लाइक आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? क्या आपने दोनों सॉल्व कर दिए थे? हाँ सर, दोनों सॉल्व हो गए थे क्वेश्चंस। ओके ओके, और लाइक एसडी इंटर्न रोल है तो सिर्फ दोनों का आपको लॉजिक बता के काम चल गया कि और भी कुछ करना पड़ रहा था? क्या आप उस पर कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, मतलब लॉजिक तो बताने था, लेकिन उसका कोड भी लिखना था साथ साथ में। ओके, कोड भी लिखना पड़ रहा था। कोड भी लिखना पड़ा था, और सर मतलब उसमें प्रॉपर वेरिएबल नेम्स और उसमें फंक्शंस प्रॉपर होने चाहिए थे। और सर उसमें मतलब कि जैसे आप कोड लिख रहे हो तो आपको समझाना भी था अपने आप को साथ साथ में ओके कोड लिखते लिखते। ओके ओके, तो लाइक इतनी सारी चीजें आपको करनी पड़ रही है, कोड लिखते लिखते आपको समझाना भी पड़ रहा है, वेरिएबल नेम भी हाँ सर। परफेक्ट चाहिए, फिर आपको कोड को फंक्शंस में डिवाइड भी करना है, आपको यस सर, अपना थॉट प्रोसेस वगैरह सब चीज बतानी है, राइट? क्लियर करना है यस। जब कोई बंदा अमेजोन का डीएसए इंटरव्यू दे रहा है, या कोई बंदी या बंदा डीएसए इंटरव्यू दे रहा है 2026 में, तो आपका उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होगा फॉर द डीएसए इंटरव्यू ऑफ अमेजोन और फैंग? सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व नहीं करना है, उसके मल्टीपल अप्रोचेस देखने हैं। ओके क्योंकि सर इंटरव्यू में मल्टीपल अप्रोचेस पूछते हैं, मतलब किसके ट्रैक टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ के साथ साथ कि बेस्ट अप्रोच कौन सी होगी इसके लिए। ओके 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 और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आप कोड रन नहीं कर सकते वहां पे। ओके तो सर आपको इंश्योर करना है कि कोड आपका सही हो, क्योंकि सर वो बाद में टेस्ट होता है। ओके ओके ओके, तो तो सर लाइक ये आप सब ये सर तो सब 3-4 बार चेक कर लेना है कोड की, सर वो सही है कि नहीं है, क्योंकि सर वो मौका नहीं देंगे चेक करने के बाद। ओके, लाइक एक बार इंटरव्यू हो गया तो फिर वही कोड उनके पास रहेगा और वो बाद में चेक करेंगे वो कोड आपका सही है कि नहीं, राइट? यस। इंटरव्यू में कोई फुल गारंटी नहीं होता कि उधर ही चेक हो गया सही है कि नहीं, राइट? तो नहीं आप सर, वहां पे कोड चेक नहीं होता, वहां पे से आपको टाइप करना है। ओके ओके ओके, मतलब वहां पर सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक होता है बाय इंटरव्यूअर एंड बाय यू, राइट? डीप हाँ सर, ऊपर इंटरव्यू के बाद चेक होता होगा डीब्रीफ में, और बच्चे लोग सोचते हैं वहां पर अच्छा हो गया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है, राइट? नहीं है सर। ओके, तो अमेजोन में जब आप सिलेक्ट हो गए, वन मोर टाइम कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट टू यू, बट आप ये थैंक यू बताइए सर। कितने दिन बाद उन्होंने आपको बताया कि आप सिलेक्ट हो गए आफ्टर द इंटरव्यू? सर इनिशियली मुझे वेटिंग मेल आया था ओके कि ओके आपका नाम वेट लिस्ट पे। सर लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सर, मुझे लगभग 1 महीने बाद मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड। ओके ओके, या ऑफ कैंपस में इतना डिफिकल्ट होता था, आप एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। ओके सर मैंने तो होप छोड़ दी थी। ओके ओके, पर अभी आपका हो चुका है, सो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, इसका यही कंक्लूजन है फॉर द पीपल यस। वाचिंग एंड फॉर यू एज वेल। अब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं व्हाट इज योर कोडिंग जर्नी, डीएसए प्रिपरेशन जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट। रोहित राणा, आपने ये सब कैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और कौन से ईयर से स्टार्ट किया था? क्या आप बताना स्टार्ट कर सकते हो रोहित? सर मैंने फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ था मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था कोडिंग। तो सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड लीड कोड क्वेश्चंस करता था जो और आपने स्टैंडर्ड कौन से लैंग्वेज में करना चालू किया था रोहित? सर मैं जावा में करता था इनिशियली। ओके ओके, और आप फर्स्ट ईयर से अवेयर हो गए थे कि आपको कोडिंग और जावा करना है? हाँ सर, फर्स्ट ईयर से मुझे पता चल गया था कि हाँ सर, मतलब अगर फैंग में जाना तो डीएसए करना पड़ेगा। ओके ओके, तो स्टार्टिंग में आपका क्या अप्रोच था? सर स्टार्टिंग में तो मैं लीड कोड स्टाइल और मतलब जैसे स्टैंडर्ड शीट है सर वो लेकर सॉल्व करता था। ओके हाँ, लेकिन सर फिर मैंने 1-2 ओएस लिए, ओके फिर मुझे बाद में पता चला कि सर वो उन चीज से ओए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वो टोटली अनसीन नए क्वेश्चन आते हैं। ओके ओए देता था, लेकिन सर मुझे पता चला कि सर ओए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जो स्टैंडर्ड शीट्स हैं, क्योंकि वो एकदम अनसीन और मतलब हार्ड क्वेश्चन आ रहे थे। ओके तो सर फिर सर मैंने आपका कोर्स देखा, ओके, मतलब मैंने नेट पे सर्च किया, तो सर मैंने देखा कि आप ओए क्वेश्चन करवा रहे थे उस टाइम पे। या तो सर फिर मैं आपके कोर्स में एनरोल हुआ। हाँ तो सर वहाँ पे मुझे काफी सीखने को मिला, मतलब वहाँ पे काफी अनसीन टॉपिक्स और अनसीन मतलब क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए। तो सर मतलब नॉर्मल कॉलेज टाइम पे तो मतलब काफी मतलब
8-9 घंटे क्लासेस होती थी, हाँ, तो उसमें शाम के 3-4 घंटे पढ़ पाता था। ओके, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो सर तब जब कॉलेज का ऑफ होता था, तो सर हाँ, उस टाइम पे मैं लगभग 11 से 12 घंटे तक पढ़ लेता था एक दिन में। अच्छा मतलब 12 आवर्स डीएसए करते थे, राइट? जैसे 12 आवर डीएसए इन सिंगल डे। ओके, ओके, ओके। तो आपका अगर हम अटेंडेंस भी चेक करें तो आप 8 से 10 महीने तक डेली क्लास भी आए हो, रोज होमवर्क भी करते थे। इसके यस। अलावा आप खुद से भी 5-8 घंटा पढ़ रहे हो जब कॉलेज नहीं है, और जब कॉलेज है तभी भी आप 3-4 घंटा पढ़ ही लेते होंगे, राइट? और मैक्सिमम तो आप 12 घंटे तक जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आना ही था। सो लाइक ये सब चीजें तो आपने की। और आपकी एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपकी तरफ से रोहित राणा क्या टिप होगी उन बच्चों के लिए जो ओए और इंटरव्यू का प्रेप कर रहे हैं फॉर फैंगम कंपनीज ऑफ कैंपस और इवन ऑन कैंपस, अगर कोई टायर 1 टायर 2 कॉलेज का बच्चा देख रहा है, तो आपका क्या गाइडेंस और टिप्स है फॉर डीएसए फॉर देम? सर जो स्टैंडर्ड लीड कोड क्वेश्चंस है सर वो इंटरव्यू लेवल तक चल जाते हैं, लेकिन ओई लेवल के लिए आपको कॉन्टेस्ट देने पड़ेंगे। मतलब कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, तो इनके उनके कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। ओके, ओके, तो सर उनको फिर अपसॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉन्टेस्ट दे दिया फिर क्वेश्चन छोड़ दिए। हम्म, हाँ, सर मतलब अपसॉल्व करना, उनके नए नए सोल्यूशन ढूंढना। ओके, सर मैं तो फिर यही करता था मतलब अपनी प्रिपरेशन में। ओके, जैसे कंपनीज के पास ओई क्वेश्चंस होते हैं, लीड कोड में अवेलेबल होते हैं और आपको मिल जाएंगे यहाँ वहाँ से, तो उनको अब सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी पास डीएसए क्वेश्चंस हैं, जो पास ओई क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, उनको सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। उससे काफी गाइडेंस मिल जाती है। राइट। लीड कोड डिस्कस सेक्शन में लोग पोस्ट करते रहते हैं, रेडिट पर भी मिल जाता है, देसी यस सर। वेबसाइट पर भी मिल जाता है। ओके। यस सर। सो रोहित राणा, आपसे ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली many students in our program watch this and crack even better offers, and also the people watching this video get lots of guidance and they also crack very good offers. So lots of thank you for coming to this podcast, Rohit Rana. थैंक यू सर।